Okay. So the first question is power is transferred through a machine as shown in figure. Okay. What is the efficiency of सर the इसके थोड़े एमसीक्यूज है मुझे लगता है। yes 4 पेजेस हैं 40 सिर्फ। या 44 तक है। चलो शुक्र। ओके तो एफिशिएंसी आपका आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट पावर हो जाएगा। यस सर। नहीं सर, हाँ यस सर, बिल्कुल यही हो जाएगा, यही हो। इसमें या इसमें आउटपुट पार्ट डी हो जाएगा। ओके क्योंकि आउटपुट यूजफुल आउटपुट। अच्छा अगर ये आपको गिवन नहीं है सो यू कैन राइट इट लाइक आउटपुट पावर पावर लॉस भी उसमें ऐड हो जाएगी। या power loss. Okay, input power is equal to this. Okay, question number 2. Air in a bicycle pump is forced through a wall at a constant pressure P in one stroke of the pump. The volume of air in the pump chamber is reduced from V1 to V2. Okay, it means अच्छा pressure आपका constant है. Okay, what is the work done on this air in one stroke of the pump? तो हमारे पास जो work done था that is equal to power times change in volume. I think that the proposition and this team has done a bad job in creating this city. Alright, I'm not proposition in a minute. That is work done, change in work done is equal to power times change in volume. So this is the formula. So आपका जो power work हो जाएगा that will be equal to change in volume. Volume आपका पहले V1 था अब V2 हो गया, तो this would be V1 minus V2. सी या एक्चुअली यहाँ पे आपका जो वर्क है वो नेगेटिव वर्क हो रहा है। ओके इट विल बी लाइक Yes, sir. V2 minus V1. ओके यहाँ पे आपका वर्क जो है वो नेगेटिव वर्क हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हम सिलेंडर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। दिस इज द वर्क डन बाय द एनवायरनमेंट ऑन द सिलेंडर, यू कैन से लाइक दिस। सो यहाँ पे हम लाइक नेगेटिव वर्क हो रहा है आपका, तो दैट्स विल बी इक्वल टू P विल बी इक्वल टू V1 minus V2 हो जाएगा। I like Yes. to identify the market proposition, but I think you have to do more than that. You have to A identify. trolley runs from P to Q along a track. At Q, its potential energy is 50 kilojoule less than at P. Okay. At P, the kinetic energy of the trolley is 5 kilojoule. Between P and Q, the work the trolley does against friction is 10 kilojoule. What is the kinetic energy of the trolley at Q? Analysis in regard not just the argument but the analysis in totality to make sure that you understand what's happening over here So- and wasn't happening. आपसे सवाल ही पूछा गया जो कि अच्छा सवाल है proposition का, proposition थोड़ी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जाती बस हो जाती थी। तो आपने पूछा कि children are dying of food, so self respect क्यों मैटर करेगी? That's a very valid point. एक बंदा जो कि hold on, एक बंदा जो कि जिसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं, हैदर- बच्चे भूखे मरने वाले हैं, उससे important Yes, sir. ये बैकग्राउंड नॉइस आपका? सर मैं सोच रहा हूँ। ओहो सर सॉरी, मैं दूसरे रूम में चल जाता हूँ। एक मिनट। ओके अब्दुल वासिया क्या करना है यहाँ पे? एक्चुअली हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी एट पी है दैट इज 5 किलो जूल एंड काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी is 5 kilojoule less than at P. So if this is potential energy, let's say this is काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में, जैसे वो नीचे आएगा। let's say potential energy at P, यहाँ पे आपका potential energy at Q is PQ, kinetic energy at Yes. P is KP and kinetic energy at Q is KQ. अच्छा KP आपको Okay, गिवन है right. that is 5 kilojoule. यस सर। Okay. अच्छा kinetic at Q its potential energy is 50 joule less than at P. तो it means कि आपका जो है potential energy at Q that will be equal to potential energy at P minus 50 हो जाएगा, right? 50 होगा या 5 होगा सर? 50 kilojoule. ओ अच्छा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। At Q its potential energy is 50 kilojoule less than at P. Okay. राइट सर, एग्जैक्टली। Yes. यस सर। अच्छा at P the kinetic energy between P and Q the trolley of the work the trolley does against the friction is 10 kilojoule.
What is the kinetic energy of the trolley at Q? We need to find the kinetic energy of the trolley at Q. This one, okay? यस सर। सर इतने को रिलेशन निकालना पड़ेगा हमें पी और क्यू की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में, उसी से निकलेगा वो, और तो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे मेरे पास जो टोटल एनर्जी कितनी थी यहाँ पे? हमें सर यहाँ पे हमें दोनों दिए हैं 55। 55, यस सर एग्जैक्टली 55 किलो जूल है। मेरे ख्याल से पी पे जाके काइनेटिक एनर्जी जो होगी 45 किलो जूल होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्यू पे उससे हाँ एक्चुअली टोटल एनर्जी क्यू पे जो है वो होगी, ओके? तो टोटल एनर्जी एट पी, टोटल एनर्जी एट पी विल बी इक्वल टू एनर्जी लॉस इन फ्रैक्शन, ओके? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसे तो वो इक्वल कांस्टेंट रहेगी, दोनों साइड इक्वल ही रहेगी। Energy at Q, energy at P will be equal to energy at Q plus energy loss in fraction, and that is 10 kilojoule. Can I write it like this? Energy at, this is at. तो टोटल एनर्जी एट पी क्या है? टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमें गिवन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी 5 किलो जूल है। दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शन इन वो कितना है 10 किलो जूल प्लस ये एनर्जी एट क्यू कितना है, वो भी उसी तरह लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट क्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू प्लस 10 आ जाएगा। अच्छा तो अब इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस 5 किलो जूल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एट क्यू अपनी जगह पे आ जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस 50 प्लस 10 किलो जूल। सो ये तो इसके साथ कट जाएगा, ये 50 उस साइड पे आ जाएगा। दिस विल बी माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 40 तो 45 आ रहा है इससे। या 45 ऑप्शन है, बी ऑप्शन। समझ आ गया आपको? इजी था। यस सर, मुझे समझ आ गया। नहीं सर रिपीट कर दें। अच्छा यहाँ पे इस तरह था ना कि इन्होंने कहा कि हमारे पास ट्रॉली एट पॉइंट पी है, ओके? उसके बाद ट्रॉली एट पॉइंट क्यू जब आएगा तो उस पर फ्रैक्शन भी होगा, ओके? तो एनर्जी लॉस इन फ्रैक्शन इज 10 किलो जूल, ओके? दैट इज गिवन टू यू। के पास मैं समझ गया सर, वो दोनों साइड से सेम होनी चाहिए। तो 55 आ गई तो उधर फिर हम उसको 10 माइनस कर देंगे 54 से। या एक्चुअली आपका इस तरफ का टोटल एनर्जी बस आपने कांस्टेंट रखनी है, ओके? तो बस वो आपका जो एनर्जी या टोटल एनर्जी यहाँ पे होगा वो फ्रैक्शन में भी लॉस हो रहे हैं और बाकी जो बच जाते हैं वो क्यू पे पॉइंट पे आ जाता है। To travel at a constant speed, a car engine provides 24 kilowatt of the useful power. The driving force of the car is 60 Newton. At what speed does it travel? तो ये वो एक फार्मूला था, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस भी किया था और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि ये फार्मूला अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो लेट्स सी कि आप लोग भूल गए हो या आप लोगों को याद है। यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा सर, हम भूल ही गए मुझे लगता है। और वो स्टेटमेंट मुझे याद है, इसी वजह से वो फार्मूला मुझे भी याद है। वो सर एक मुझे जरा याद करिए। That was equal to force times velocity. Power is equal to force times सर फोर्स टाइम पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम वेलोसिटी, ऐसे मैंने पढ़ा ही आज। Yes, so this is 24 kilowatt. Oh, यस सर, 24,000 वाट yeah, for 24,000. डिवाइडेड बाय फोर्स जो है हमारे पास वो है 6,000 न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट स्पीड जो है वो आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे आपका वो इजी है, आप P 24,000 डिवाइड बाय 600 न्यूटन, सो उससे आप कर लो, ओके? वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। P इज इक्वल टू FV फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, बस सिंपल। यस सर, P इज इक्वल टू FV, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू कांस्टेंट वेलोसिटी। या वेलोसिटी। Which of the following is an expression for power? या पार्ट सी हो जाएगा, ओके? फोर्स टाइम वेलोसिटी। A car सी driver, हो जाएगा सर, अभी किया हमने फोर्स इनटू वेलोसिटी।
A car driver adjusts the pressure on a car brakes so that the car driver at constant speed down a hill from P to Q. The magnitude of the change in the car kinetic energy is del E K. The magnitude of the change in the its gravitational potential energy is del E P. Which statement is correct? सर वैसे जो EP होगी दैट विल बी ग्रेटर देन EK और EK विल बी ग्रेटर देन जीरो बिकॉज सर EP लॉस जो हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी में भी लॉस हो रही है और साथ फ्रिक्शन में भी लॉस हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है EP कैन नॉट बी EK। फिर ड्राइविंग फोर्स भी लग रही है तो जो Yeah. ब्रेकिंग फोर्स है Yeah, वो भी लग रही है, exactly. तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन तो होनी ही होनी है उसके अंदर। Actually, we need to find the change in its kinetic energy, not just the kinetic energy. Okay, change in kinetic energy and change in potential energy. We need to find del E Q and del EP. I think इसमें तो ये ऑप्शन नहीं होगा. सर आप कौन सा कहते हैं? Part D. सर आप कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी. काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उन्होंने कांस्टेंट स्पीड ऊपर कहा है. तो सर कांस्टेंट स्पीड भी हुआ तो फिर क्या यानी v स्क्वायर तो हो जाएगा ना, नहीं, वेलोसिटी तो होगी उसकी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। या वेलोसिटी होगी. मैं ये नहीं कह रहा कि काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो. मैं कह रहा हूँ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो. हाँ चेंज ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। डेल्टा लगाया हुआ है उसने। या डेल्टा हाँ चेंज जीरो हो सकता है बिकॉज़ कांस्टेंट वेलोसिटी पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो सेम है, या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, चेंज तो हो ही नहीं रहा काइनेटिक एनर्जी। यस एग्जैक्टली. एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने डायग्राम भी दिया, तो इस डायग्राम को जब स्टूडेंट देख देते तो वो कहते हैं कि यार यहाँ पे तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो यहाँ पे तो काफ़ी तेज़ी के साथ गाड़ी आएगा. इट इज़ डाउन द हिल, सो वो काइनेटिक एनर्जी आ जाता है यहाँ पे. तो दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. एन एरिया ऑफ लैंड is an average of 2.0 meter below sea level. Okay, to prevent flooding, pumps are used to lift rainwater up to sea level. What is the minimum pump power output required to deal with 1.3 10 to the power 9 kilogram of rain per day? Okay, area is given to you, that is below 2 meter below sea level. Okay. एरिया और मैथ के बन सर टाइम तो इसमें पर डे आ जाएगा, तो टाइम तो खैर 24 आवर्स पर डे होते हैं, 3600 सेकंड आ जाएगा, 36,000 सेकंड आते हैं, कितने आते हैं या 36 जितने भी सेकंड्स आते हैं उससे हम निकाल लेंगे 24 into 60 into 60, या तो वो तो आपका मसला नहीं है, टाइम तो सेकंड्स में हमारे पास आ जाएगा क्योंकि पर डे है। सर नहीं 3600 तो नहीं होगा? एक्चुअली आपका सेकंड में आपने लेना है. 3600 से तो ज्यादा होगा। तो सर 24 आवर्स अ डे, तो पर डे 60 मिनट्स into 60 and 60 minutes each contain 60 seconds into 60. 86400 होता है. Yes 8640। अच्छा, ऊपर आपका सर लेकिन एनर्जी यहाँ पे कैसे निकलेगी? एरिया उसने दिया हुआ है और साथ उसने मास दिया हुआ है, तो वेट सर हम यहाँ से निकाल सकते हैं मास से, और वेट जो एरिया पे लग रहा है वो होगा इसका वर्क डन। आई एम नॉट श्योर, मैंने assumption लगाई है, अगर हम वेट निकाल लें और वो एट कितने एरिया पे लग रहा है तो उससे हमें हमारे पास प्रेशर आ जाएगा इसका। नहीं, दिस इज मास इज गिवन टू यू. ये सर तो सर मैथ से हम वेट निकाल लेंगे ना इनटू 9.81 करके।
और आपका हाइट इज 2 मीटर। यस सर। तो MGH। यस चलो ये आसान हो गया। ठीक है इजी या हो गया। इस फार्मूला से आप कर लो तो मैं आपके तो पता पास नहीं कितने पॉइंट जा रहा था। इससे कर लो तो 1.3 टाइम्स सर कौन सा फार्मूला यूज किया आपने? ये एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने कोई वेलोसिटी मुझे गिवन नहीं है, उन्होंने हाइट गिवन है। तो हाइट में हम कौन सी एनर्जी लेते हैं? एक्चुअली आपका Yes, पावर sir. होता है वो एनर्जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। ओके MGH। सो दिस विल बी यस सर। H डिवाइड बाय T। हाइट T की वजह से ठीक है। यहाँ पे आपको MGH गिवन है बिल्कुल पर ठीक। डे अकॉर्डिंग टू हैदर। 24 आवर्स आ गया। ठीक या है। तो 24 टाइम्स 60 टाइम्स 60 ले लो। Well, sir. 86400। ओके इसको सॉल्व कर लो, यू विल Right, गेट sir. दी ठीक है। होपफुली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके यस सर ये हो गया आसान है। Okay, it went from a tree drop from a 200 meter high cliff onto a beach below. During its fall, 40% of the trig's energy is converted into thermal energy. Okay, heat energy. What is the speed at which the trig hits the beach? Okay, we need to find the speed. So, सर ये देखें यहाँ पे हमारे पास MG और M तो हमारे पास नहीं है। hmm, तो GH से अगर हम निकालें GH इज इक्वल टू 1/2 V स्क्वायर और 20 और जो 40% GH है हमारे पास जो भी है मैस लेट से हम 1 कंसीडर कर लेते हैं इसका। दोनों तरफ ही वो इक्वल हो जाएगा ना। और सर इसका हम 40% निकाल लेंगे फिर MGH का, वो MGH में से यानी हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसको इक्वल रखेंगे हम 1/2 MV स्क्वायर के, तो उधर से फिर हम V स्क्वायर निकाल सकते हैं। actually 40% जो है वो आपका thermal टाइम energy से में, दोनों में चाहिए ना। तो it means के 60% Yes. of total energy. 40% तो वेस्ट हो गया ना। यस सर 60% ऑफ टोटल एनर्जी, 40% तो वेस्ट हो गया थर्मल एनर्जी में। यस अच्छा, ड्यूरिंग इट्स फॉल तो इट मींस के 60% ऑफ टोटल एनर्जी ले लें या 60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ले लें? यस सर। सर नहीं 60 से पहले हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं ना, वो MGH से नहीं निकालेंगे। हमारे पास H भी है, हमारे पास G भी, और M लेट्स सपोज हम 1 kg कंसीडर कर लेते हैं, वो टोटल हमारे पास एनर्जी है। ड्यू टू इट्स फॉल 40% ऑफ इट्स एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। अब सर हम इस एनर्जी का 60% निकाल लेते हैं, वो जो 60% है वो 1/2 MV स्क्वायर के इक्वल होगा। नहीं, यहाँ पे आपने 60% ऑफ टोटल एनर्जी लेने हैं। तो सर टोटल एनर्जी तो सबसे पहले वही थी ना जो MGH थी, क्योंकि सबसे पहले तो हाइट पे था, तो वही टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में। अब जब वो गिर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है और उसमें थर्मल एनर्जी भी आ रही है। तो बेसिकली MGH शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस थर्मल एनर्जी। तो इफ वी माइनस MGH दिस थर्मल एनर्जी फ्रॉम MGH, देन इट गेट्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली यहाँ पे जब वो ऊपर था, सही है, तो टोटल एनर्जी कितनी थी? वो हमारे पास MGH थी ऊपर। MGH तो अभी आई थिंक हमने इसका, हमारे पास जो MGH का 40% एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक वी विल टेक द 40% ऑफ दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी एंड बाकी 60% आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब वैसे आप हो कॉल पे? ये मेरा नेट स्लो है। मुझे सर की आवाज आ रही है। अच्छा, अब आवाज आ रही है आपको हैदर? यस सर अब आ रही है। अच्छा, हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ऊपर जो एनर्जी है ना, दिस वन MGH, दिस इज द टोटल एनर्जी। ओके, टॉप पे 200 मीटर ऊपर क्लिफ पे।
जब वो फॉल करते हैं तो उस टाइम आपका जो 40% Yes. of mgh you can say that is converted into heat energy plus बाकी जो रह जाती है 60% of mgh will be converted into the kinetic energy. So this will be mgh 0.40 mgh आ जाएगा प्लस 0.601 डिवाइड बाई 2 mv स्क्वायर आ जाएगा. आई थिंक ये इसी तरह है. इसको कर लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है. m तो आपके साथ m के साथ कट हो जाएगा. अच्छा, g इज 9.8, हाइट इज 200. 0.40 9.8 हाइट इज 200 प्लस 0.60 डिवाइड बाई 2 v स्क्वायर. तो इसको कर लेते हैं 9.8 दैट्स इक्वल टू 1960 माइनस इससे क्या आता है 0.40 टाइम्स 9.8 टाइम्स 200 दैट इज -784 आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू 0.60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.30 आ जाएगा v स्क्वायर. तो 1960 माइनस 784 दैट्स इक्वल टू 1176 डिवाइड बाई 0.30. सो 3920 आता है. इसका स्क्वायर रूट ले लो, सो यू विल गेट 62.60 आ रहा है. ओके 62.6, तो इट मीन्स कि 63. इसका करेक्ट आंसर क्या है? सर मेरे ख्याल से 63 ही है. ओके, तो ये समझ आ गया आपको दोनों को? यस सर, मैं भी यही कह रहा था, सेम सेम ऐसी बात कर रहा था. या ओके, बस मुझे उस टाइम समझ नहीं आया था, लेकिन ये सही है. दैट्स अब दुआ से आपको समझ आ गया ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? रिपीट कर दें. ओके, यहाँ पे क्या है, वो कह रहे हैं कि आपका 200 मीटर ऊपर है आपका ऊपर, तो ऊपर कितना एनर्जी है, टोटल एनर्जी आपका कितना है, दैट इज mgh. ओके, पोटेंशियल एनर्जी. उसके बाद वो मोशन स्टार्ट कर लेता है. ओके, दैट इट विल फॉल डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ. ओके, सो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन ये कह रहे हैं कि 40% ऑफ द फिक्स्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी. तो mgh is the total energy that is equal to 40% of the mgh plus 60% of the mgh. Okay, which is equal to 100% of mgh. Okay, which is equal to mgh. तो आपका mgh क्या हो जाए, 40% of mgh is converted into thermal energy. तो ये आपका 0.40 आ जाएगा, mgh आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 60% जो रह जाते हैं तो वो आपका फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में. तो 0.60. ठीक है सर, मैं समझ गया, बस ठीक है. सो इस तरह फिर आप सॉल्व कर लो. ओके, अगर ये ना होता तो फिर मैं कहता कि mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय 2 mv स्क्वायर. Okay, a weight W hangs from a trolley that runs along a rail. The trolley moves horizontally through a distance p and simultaneously raises the weight through a height q. Okay, at a result, the weight moves through a distance r from x to y. It start and finish at rest. How much work is done on the weight during this process? अच्छा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस तो वर्क जो डन f टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सर वेट तो सर ऊपर ही जा रहा है, तो क्यों क्यों होना चाहिए? मेरे ख्याल से इसका आर तो नहीं हो सकता, ऊपर जाएगा. अच्छा, या ट्रॉली जिस तरह मर्जी मूव करती रहे, ट्रॉली अपनी जगह मूव कर रही है, लेकिन एक्चुअली आपका फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, अलोंग द डिस्टेंस होना चाहिए. ओके, आपका फोर्स है दैट शुड बी अलोंग. यस सर, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हाइट ही गेन कर रहा है ज्यादा. तो एक्चुअली आपका जो वेट है ना, उसके ऑपोजिट एक फोर्स आप अप्लाई कर लो, सो उसके थ्रू ऊपर होगा, लाइक नॉर्मल फोर्स, यू कैन कॉल इट नॉर्मल फोर्स. ओके, तो वो फोर्स या टेंशन फोर्स, योर टेंशन इज इक्वल टू वेट. तो आपका जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो आपका W क्यों हो जाएगा. Okay, a motorist traveling at 10 meter per second can bring his car to rest at a distance of 10 meter. If he had traveling at 30 meter per second, in what distance could he bring the car to rest using the same braking force? सर 90. किस तरह? सर ब्रेकिंग फोर्स सेम है, तो स्पीड उसकी 3 टाइम्स ऑब्वियसली बढ़ गई है.
तो क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स 3 टाइम्स कम ही है तो वो बढ़ जाएगी, फिर 90 हो जाएगा। मुझे एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं याद है इसकी, लेकिन इसी तरह का था कुछ, हमने किया है पहले। ये तो वो काइनेमेटिक्स में हमने नहीं किया था। एक्चुअली उन्होंने कहा कि एट रेस्ट ब्रिंग, तो इट मीन्स कि यू आपका 10 मीटर पर सेकेंड है और वी आपका 0 हो जाएगा। एस इज दिस वन। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर, तो 100 आ जाएगा, माइनस नहीं माइनस 10 माइनस 100 आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 2 टाइम्स 10 टाइम्स ए। तो ए आपका हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास सेम ब्रेकिंग फोर्स, हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स आपका सेम है और मास भी सेम होता है, तो इट मीन्स कि एक्सेलरेशन हमारे पास सेम होगा। बट इफ ही हैड बीन ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, सही है, तो इफ यू पुट 30 ओवर हियर, 30 स्क्वायर माइनस ये 0 हो जाएगा, और आपके पास जो 2 ए आपके पास सेम होगा क्योंकि सेम ब्रेकिंग फोर्स है, और एस आपके पास आ जाएगा। तो 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 900 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा -10 आ जाएगा एस, या तो 90 आ रहा है आपका। तो कल लगाया था आपने, आपको याद था? यस सर, मुझे याद था। Okay, next question. A mass is raised vertically in time t. The increase in its gravitational potential energy is EP, and the increase in its kinetic energy is EK. What is the average power input to the mass? Okay, हमारे पास जो power है that is equal to energy per unit time. तो हमने एवरेज पावर, तो एवरेज पावर मीन्स के एवरेज एनर्जी, इसमें यही आएगा, इंक्रीज इन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, व्हाट इज द एवरेज पावर इनपुट टू द मास। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास एनर्जी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सर एक मिनट, एनर्जी जो होती है दैट इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो डिवाइड बाय टाइम कर लो, तो आपके पास आ जाएगा कि आपका जो पावर है, और यू कैन से एवरेज पावर इज इक्वल टू ई पी प्लस ई के डिवाइड बाय टी। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यस question number 12. A boat moving at constant speed v through still water experiencing a friction force F. What is the power developed by the boat? तो तो easy है, यही होगा, F v वही है, सही है। What is the expression used to define power? Energy per unit time, work done per unit time. Okay, work and energy. नहीं। सर वर्क डन ओवर टाइम भी तो करेक्ट ऑप्शन होगा। Yes. ऑप्शन डी 13। और इसमें सी ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है, सी ऑप्शन फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। ये बाकी दो नहीं आ रहे, लेकिन ये सी भी इसमें करेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमने अभी जो पढ़ा है, ये ऊपर जो हमने पढ़ा है, ये भी आपका फोर्स टाइम्स वेलोसिटी हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। लेकिन ये फार्मूला आपका डिराइव्ड हुआ है इस फार्मूले से, तो शायद इसलिए उन्होंने थोड़ा सा वो इसमें भी वो कंसेप्ट थोड़ा सा ऐड किया हो, क्योंकि ये फार्मूला जो ये इससे डिराइव्ड हुआ है, दिस इज द डिराइव्ड वर्जन ऑफ दिस फार्मूला, वर्क इन यस सर। Okay, question number 14. A ball is thrown vertically upward, neglecting air resistance. Which statement is correct? Again, the ball is greater at the greatest height attained. No. By the principle of conservation, the total energy of the ball is constant throughout. Yes. By the principle of conservation momentum, the momentum of the ball is constant. No. Velocity change होती जाती है. The potential of the ball increase uniformly with time during. Yes. No. Option B होगा इसमें. Car X is traveling at half the speed of car Y. Car X has twice the mass of car Y. Which statement is correct? Car X has half the kinetic energy of car Y. Car X has 1/4 of the kinetic energy. अच्छा, यहाँ पे आप इस तरह कर लो कि car X has सर 1/4 ही होगी मेरे ख्याल से तो।
raised क्योंकि to सर देखें उसका ट्वाइस मास है और स्पीड उसकी हाफ है, तो क्वार्टर ही होनी चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा इस तरह के काइनेटिक एनर्जी x डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी y इज इक्वल टू mx has twice car x has twice the mass of car y. So this will be car x is equal to 2, this will be 2 times my और नीचे भी y आ जाएगा vy square car x is traveling at half the speed of car y, तो vx is equal to vy divided by 2, तो vy square ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय 4 हो जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा vy स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये आप काट यस तो हाफ आएगा। ओके, अब दोबारा से समझ आ गया आपको कि नहीं? 1 डिवाइड बाय 2 आएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार y इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार x। अब यू वेट, उन्होंने क्या मांगे? कार x इज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार y, या सो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्चुअली जब भी इस तरह का वो आ जाते हैं तो आपने इस तरह सीधा वो नहीं करना, आप इस तरह का रिलेशन बना दिया करो। ओके, अच्छा मैंने x और वेलोसिटी को डिफरेंट अल्फाबेट से इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं। अगर एक वेलोसिटी सिर्फ चेंज हो रहा है तो फिर आप m को कांस्टेंट रखोगे। सर मैं